Good morning everyone and welcome to the class. Today we are going to start the revision of a new chapter, and that is the end of bipolarity. In the previous chapter we have discussed about Cold War, and what we see that during the Cold War the world was bipolar, and this bipolar world, there were two in this bipolar world, there were two superpowers, USA and USSR, and we have seen that these two superpowers were uh, promoting, or they were supporting two opposite ideologies, that is the capitalism and liberal democracy. That was the ideology of US bloc, and the ideology of the Soviet bloc or the bloc of USSR was socialism and communism. So we have seen how this Cold War period, that was from 1945 to 1991, during this Cold War period there was ideological differences was existing between these two superpowers. Other than this, we have also seen that there was struggle for power, there was a struggle for expanding the influence of by these two superpowers. And what we find that some happenings were responsible for this end of a Cold War. This Cold War ended in the year 1991. And what was the reason of this end of Cold War? The reason was कि जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर में चेंज हो गया. मीन्स जो हमारे सामने दो सुपर पावर्स थे, उन दो सुपर पावर्स में एक सुपर पावर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो एंड हो जाता है, एग्जिस्टेंस उसकी ख़त्म हो जाती है. आज के डेट में यूएसएसआर इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग. तो that was the disintegration of USSR that happened in the year 1991. It's not कि जो US और USSR के बीच कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कि USSR हार गया और फिर USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया एंड देन कोल्ड वॉर एंड हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. USSR का जो एंड हुआ, द एंड ऑफ द USSR was the result of the action of the people only, ordinary people, ordinary men and women. Their mass action was responsible for this disintegration. And it was not only the disintegration of USSR, but actually this was the, we can say this was the end of the second world. In the previous chapter, we have seen how during the Cold War era, how the world was divided into three worlds. The first world, which was represented by the capitalist countries, which were in the US bloc. Then the second world, which was the communist bloc, which was represented by the USSR, and the third world, which were the countries who became independent after the second world war. तो इस तरह से जो वर्ल्ड थी वो थ्री वर्ल्ड्स में डिवाइडेड थी. बट नाउ व्हाट वी फाइंड इन द ईयर 1991, दिस डिवीज़न खत्म हो गया, ये डिवीज़न, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड जो थी वो एंड हो गई. It was the disintegration of second world also, with the disintegration of USSR, because when leader is not there, जब लीडर ही खत्म हो गया, लीडर ही डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं दे विल ऑल्सो बी डिसइंटीग्रेटेड. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ ही साथ हुआ. जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, they were under the influence, under the control of USSR, because they have during the second world war क्या हुआ था कि ये जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, they were under the fascist power.
इटली जर्मनी के वो कंट्रोल में थे, एंड इट वाज यूएसएसआर विच मेड देम फ्री during the Second World War. So after Second World War there was control of USSR in these countries. और यूएसएसआर के ही इन्फ्लुएंस में ये जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया. And we have discussed also about the Eastern Alliance, the Warsaw Pact. In this Warsaw Pact, these 8 countries of Eastern Europe were there, है ना. तो ये क्या है, पूरा का पूरा जो सेकेंड वर्ल्ड है वो इस तरह से काम कर रहा था. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर इमर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर पावर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर. अगर यूएसएसआर के बराबर का कोई अदर पावर था तो दैट वाज ओनली यूएस, एंड दैट इज व्हाई द वर्ल्ड चेंज्ड इनटू बाइपोलर वर्ल्ड, है ना. 2 पोल्स में बट गया था पूरी दुनिया. एंड विद दिस वी सी दैट Soviet Union has its impact, its influence on the countries of the Eastern Europe. Okay, and but this control, there was control, there was everything was fine, but it started to disintegrate. And the first sign of disintegration of the Second World was the breaking of the Berlin War. I have discussed this in the previous chapter also. Berlin Wall was the symbol, greatest symbol of Cold War. ये बर्लिन वॉल का होना, जर्मनी का जो डिवाइड हुआ ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, that was that Berlin Wall. This Berlin Wall was the greatest symbol of Cold War. बर्लिन वॉल जब तक रही तब तक कोल्ड वॉर रहा. वो उसको सिंबल, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 blocks. But what we see that some such dramatic events took place in the year 1989. It started from 1989, and it was through the effort of the people that the Berlin Wall was broken. There was no military action. ये लोग जो थे, पीपल जो थे, कॉमन ऑर्डिनरी पीपल, उनके तरफ से, उनके एफर्ट से ये बर्लिन वॉर जो है वो टूटा. एंड दिस एंड ऑफ बर्लिन वॉर, ये जो टूटना बर्लिन वॉल का था, ये दैट वाज इंडिकेटिव ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड. क्योंकि उसके बाद क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है, एंड आफ्टर दैट कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप स्टार्ट टू गेट themselves फ्री ऑफ द कम्युनिस्ट रेजिम. वो कम्युनिस्ट रेजिम से अपने आप को फ्री करना शुरू कर देते हैं 1 by 1, एंड अल्टीमेटली 1991 के दिसंबर में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एंड विद दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर द वर्ल्ड टर्न्स टू यूनिपोलर फ्रॉम बाइपोलर, एंड जो कोल्ड वॉर चल रहा था, दैट कोल्ड वॉर एंडेड. एंड वन मोर थिंग कि अगर हम देखें कि हर वॉर, जब भी लड़ाई होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है, कुछ कोई जीतता है कोई हारता है. सो इन द सिमिलर वे इन दिस वॉर, इन दिस कोल्ड वॉर, वी कैन सी दैट इट वाज द डिफीट ऑफ यूएसएसआर. क्योंकि वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर दिया. इट मीन्स कि जो इनके बीच की जो लड़ाई थी, सुप्रीमेसी की लड़ाई थी, अगर हम आइडियोलॉजी की लड़ाई को देखें तो उस आइडियोलॉजिकल वॉर में यूएसएसआर डिफीटेड हो जा रहा है. क्योंकि ये प्रूव हो गया कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड. पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आइडियोलॉजी. People were not with this ideology. That is why the regime, the communist regime, was disintegrated only by the effort of the common people. So it was like this. So now we will go to the history, because in this chapter we will have to discuss in detail the disintegration of USSR. कैसे, क्यों, कब, all these things, consequences, and after that क्या होता है,
हाउ डिसइंटीग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, जो कंट्रीज़ हैं, यूएसएसआर के कंट्रीज़ थे, उन पे क्या असर होता है, कैसे वो अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करते. ऑल दीज थिंग्स विल बी discussed in this chapter. And one more thing, the chapter 3, that is US hegemony, that chapter has also been included in the same chapter in the revised syllabus. Now this second chapter also includes your third chapter, that is US hegemony in world politics. So that will also be covered under this chapter only. Okay. So first of all, we will see that you all have read about this Russian Revolution in your class 9th. Okay. And this Russian Revolution was held in the year 1917. This Russian Revolution, it was inspired by the ideology of socialism and Marxism, because there was a very exploitative rule of Tsar, and the condition of workers and peasants was so miserable that slowly we see that they gained that much of courage, and this revolution happened. And after this revolution, what we see that the socialist government was formed in USSR, and we can see it was the biggest attempt in the human history to end the system of private property. बिकॉज हमारा जो ये जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो यूएसएसआर जो बना, इस यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज सोशलिज्म. एंड अंडर सोशलिज्म व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोशलिज्म is based on the idea of equality. It gives more importance to the concept of equality. And in order to bring equality, it supports crushing of freedom. मतलब freedom is not important, equality is important. Equality is much more important than freedom. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म कि हमको इक्वालिटी लानी है सोसाइटी में. हमारी सोसाइटी जो है वो इगालिटेरियन सोसाइटी होनी है. इगालिटेरियन मीन्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जहाँ पे रिच और पुअर के बीच का डिवाइड नहीं हो. जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, दोज रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. देयर शुड नॉट बी कि कुछ लोग हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज कंट्रोल में है, जिनके ओनरशिप है जिनका रिसोर्सेज पे, एंड अदर पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोल और ओनरशिप ओवर द रिसोर्सेज. तो ये नहीं होना है. सोशलिज्म का मतलब है इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में. ओके, सो इट वॉज द व्यू ऑफ मार्क्स दैट अगर सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ द रूट कॉज. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो लोगों को मिला हुआ है कि दे कैन अर्न प्रॉपर्टी, दे कैन ओन प्रॉपर्टी, तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है, दैट इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक गैप बिटवीन द पीपल. That institution of private property is responsible for the gap between the rich and the poor. और ये जो इकोनॉमिक inequality है ना, this economic inequality is responsible, और it also influence the political and social inequality. अगर हमारी इकोनॉमी में inequality है, अगर हमारी कंट्री में रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड है उसमें बहुत ज़्यादा inequality है, तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये मार्क्स का व्यू है कि अगर हमारा
इकोनॉमी में इक्वालिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी पॉलिटिक्स और सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी, इन दोनों में भी हम इक्वालिटी नहीं ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो इकोनॉमिकली रिच होते हैं उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा होता है और पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो उनका इन्फ्लुएंस है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिचनेस, वो रिच है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इफ देयर विल बी economic inequality, then this economic inequality will lead to political and social inequality also. And what is the reason of economic inequality? According to Marx, this institution of private property is the reason of economic inequality. है ना? क्यों इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है? क्योंकि हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दे रखा है लोगों को। तो व्हाट इज द व्यू ऑफ मार्क्स कि अगर हमको इक्वल सोसाइटी बनानी, इफ वी वांट to bring equality in our society, we want to make our society egalitarian, what is required? The requirement is to abolish the institution of private property. So under this USSR, which was formed after the revolution of Russia of 1917, this socialism was adopted, and under this socialism, it was in the history of human, it was first time, it happened for the first time in the ह्यूमन हिस्ट्री कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसको एबॉलिश कर दिया गया। ओके, एंड वी हैव सीन दैट दिस right to property is considered as a natural right by John Locke. There were so many thinkers who supported this right to property, but Marx is of the opinion कि सारी जो बुराई हैं, the root cause of all evil is private property. तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप ख़त्म कर दीजिए, बस उसके साथ ही हमारे जो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की, दैट विल बी सॉल्व्ड. सो दिस वाज द एबॉलिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ private property. So it was abolished, and what happened that consciously an effort was made by the government to bring to make the society egalitarian. कि कैसे हम इगैलिटेरियन बनाएं। ये पहली बार इस तरह की चीज़ जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुई कि इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए, एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए इस तरह का स्टेप लिया गया। ओके, सो वी सी दैट अदर देन दिस देयर वाज वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस USSR जो कि सोशलिज्म पे बेस्ड था। उसकी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर थी, एंड दैट वाज द सोवियत political system around it was centered around the Communist Party. The Communist Party was the Communist Party played a central role in the political system of Soviet Union. Okay, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट वी सी दैट देयर वाज सिंगल पार्टी सिस्टम। एक ही पार्टी हो सकती है, जैसे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी फाइंड दैट सो मेनी पार्टीज कैन बी देयर. इन आवर कंट्री वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, एंड इन सम अदर कंट्रीज लाइक US and UK we see there is bi-party system, that is two parties. बट इट्स नॉट कि किसी ने ऐसा लिख दिया है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई ऐसा गवर्नमेंट का एक्ट है कि देयर कैन ओनली बी 2 पार्टीज. अगर US और UK में बाई पार्टी सिस्टम है तो वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. जो वहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, जो कुछ भी वहाँ का कल्चर था, वॉट एवर सो मेनी फैक्टर्स आर देयर इन ऑर्डर टू डेवलप पार्टी सिस्टम. तो वहाँ की जो पार्टी सिस्टम हुई उसमें बाई पार्टी सिस्टम इवॉल्व किया. बट दैट इट्स नॉट कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, अदर पार्टीज भी हैं
पीपल हैव राइट टू मेक अदर पार्टीज, है ना, लोगों को ये राइट है कि वो पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, बट जो हम कहेंगे जो मेजर रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में वो दो ही पार्टी प्ले करती है। इंडिया में हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई रोक नहीं है, नंबर ऑफ पार्टीज कितने भी हो सकते हैं, रोक वहाँ भी नहीं है। बाई पार्टी सिस्टम जहाँ है वहाँ भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि दो ही पार्टी हो सकती है। अगर लिमिटेशन हो जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी विल बी एंडेड, है ना। तो लिमिटेशन नहीं है वहाँ भी, वहाँ का जो सिस्टम इवॉल्व किया है दैट इज बाई पार्टी सिस्टम। और जैसा कि मैंने बताया कि अदर देन टू पार्टीज वहाँ अदर पार्टीज भी हैं, है ना। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यूएसएसआर में क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कर दिया कि देयर विल बी ओनली वन पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम, और कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। तो दैट इज द वी कैन से हाईली अनडेमोक्रेटिक। अगर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो फिर मतलब कि डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, और डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, that is a kind of autocracy, a kind of dictatorship, not of a particular person or a group of person but of a party। एक पार्टी का वहाँ पर डिक्टेटरशिप को उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया। तो आगे चल के वी विल सी कि हाउ दीज फीचर्स बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज़ को बहुत दिनों तक नहीं सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ भी वही न्यूटन का लॉ काम करता है कि जितना हम दबाएंगे उतना ही वो ऊपर आएगा। दैट इज द लॉ ऑफ न्यूटन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हम सप्रेस करेंगे लोगों की एस्पिरेशंस को, फ्रीडम की फीलिंग्स को अगर हम सप्रेस करेंगे तो दैट कैन नॉट बी एंडेड। सप्रेस करके हम एंड नहीं कर सकते हैं उसको, हम कुछ ही समय तक सप्रेस कर सकते हैं, फिर वो आएगा ऊपर, रिएक्शन तो होना ही है। एंड दैट रिएक्शन वॉज what we experienced in 1991। क्या हुआ, जो हुआ that was the reaction of this suppression। तो ये वहाँ का सिस्टम था, ओके जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द मेन सेंटर ऑफ पावर, and other than communist party no other party was allowed, and the economy was planned and it was completely under the control of the state. Individuals have no role to play in the economy of the country, okay, the economy was state controlled, planned economy। The same planned economy was adopted by our country also, but we have neither abolished this institution of private property, we have neither adopted this single party system, and there was a state control on our economy, but that was to some extent, है ना। वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। बट यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ भी प्लान्ड इकोनॉमी थी। आज के डेट में हमारी भी प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट देयर, 5 ईयर प्लान्स ख़त्म हो गए हैं, फिर भी स्टेट का कंट्रोल है हमारे यहाँ भी। बट ये कंट्रोल जो है, जिस कंट्रोल की हम यूएसएसआर में बात कर रहे हैं और जो कंट्रोल हमारे यहाँ हमने एक्सपीरियंस किया, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का जो फ्रीडम होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था। पीपल वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, political freedom or social freedom. We can say that this system was completely closed. पूरी तरह से ये बंद सिस्टम था, जिसके अंदर इकोनॉमी भी क्लोज थी, पॉलिटिकल सिस्टम भी क्लोज था, सोसाइटी भी क्लोज थी। इकोनॉमी कैसे क्लोज थी? बिकॉज ऑफ स्टेट कंट्रोल, बिकॉज ऑफ एबॉलिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पॉलिटिक्स कैसे कंट्रोल थी? बिकॉज ऑफ single party system, because of absence of opposition parties, the politics was closed. Society कैसे closed थी? Because people were not having any kind of rights and liberties. So in this way
this was the USSR. Okay, and now we will see the important features minutely. These are the important features of Soviet system. But now we will go in detail the features of the Soviet system. Okay, and how this Soviet Union became so powerful, that we see that during the period 1929-30 there was worldwide economic depression. And in this worldwide economic depression, what happened? The whole world went into depression, economic depression. Purchasing power of the people decreased so much that goods were there in the market, but people were not able to purchase it, and this kind of depression was experienced in the whole world. But at that time, what we see that Soviet Union was untouched by this depression, worldwide depression, because of this state controlled economy, because of that closed economy. उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी इकोनॉमी क्लोज थी, और उसके कारण वो अपने आप को काफ़ी उसने मजबूत बना लिया. और जो अदर कंट्रीज़ थे, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ थे, उन पे इसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ कि पूरी दुनिया जिस इकोनॉमिक डिप्रेशन से परेशान हो गई, डिवास्टेटेड हो गई, और यूएसएसआर पे उस इकोनॉमिक डिप्रेशन का कोई असर ही नहीं पड़ा. तो कुछ अच्छाई तो है, वी शुड अडॉप्ट दैट. इस तरह की चीज़ें, जो यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा इकोनॉमिकली, उसने अपने आप को सुपर पावर बनाया बिकॉज ऑफ दिस प्लान्ड इकोनॉमी. 1917 से लेकर के अगर हम देखें 1945 का जो पीरियड है, ये कितना बड़ा लंबा पीरियड है. इट इज़ ओनली 28 ईयर्स, जस्ट 28 ईयर्स. और अगर हम अमेरिका को देखें, यूएस को देखें, तो यूएस को आज़ादी मिली है 1776 में, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ जबकि यूएस सुपर पावर के फॉर्म में आ जाता है वर्ल्ड के सामने. इस पीरियड के बीच में कितने का अंतर है? $169 years. You can just comparison. You can just comparison the years. 28 years और एक तरफ है 169 years. 28 years में जो यूएसएसआर ने अचीव किया, उतना ही अचीव कर लिया जितना कि यूएस ने 169 ईयर्स में अचीव किया. इन अ वे वी कैन से, बिकॉज आफ्टर दिस 1945 व्हाट वी फाइंड दैट बोथ द सुपर पावर्स एट द सेम लेवल, इकोनॉमिकली, देन militarily, technologically, culturally, in all the sphere of life, both these superpowers at the same level. That is why the Cold War started. अगर सेम लेवल पे नहीं होते तो कोल्ड वॉर ही नहीं स्टार्ट होता, बिकॉज उनके बीच के जो पावर का जो डिफरेंस था वो बहुत कम था. तो वी विल हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि ये जो टाइम मिला यूएसएसआर को अपने आप को खड़ा करने के लिए, वो क्या था, और जो टाइम मिला यूएसए को वो क्या था. तो इन दोनों का जो गैप है, इतने कम समय में यूएसएसआर ने कैसे इतना सब कुछ अचीव किया? दैट वाज बिकॉज ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, बिकॉज स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल था. तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था, बट एट व्हाट कॉस्ट? दिस अचीवमेंट वाज गेन्ड बाय यूएसएसआर एट द कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीपल. लोगों के फ्रीडम के कॉस्ट पे आपने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया, बट दैट डेवलपमेंट कैन नॉट लिव लॉन्ग, दैट डेवलपमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर एवर. क्योंकि आप अगर फ्रीडम को क्रश करके डेवलपमेंट ला रहे हैं तो वो डेवलपमेंट हमारा टेम्प्ररी होगा. यूएस कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. क्यों? क्योंकि वो वहाँ फ्रीडम है, ट्रू डेमोक्रेसी है, पीपल आर फ्री, पीपल आर इंडिपेंडेंट. तो जब लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. हम सोचेंगे कि हम पूरे कंट्री को क्रश करके और अपने आप को बहुत सुपर पावर बना ले, तो दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड. और वही हुआ यूएसएसआर के साथ.
सिर्फ 45 ईयर्स, फ्रॉम 45 to 91 it was there as a superpower only for 45 years, 46 years. तो ये क्या है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस. तो अब हम आगे जो है वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, द फीचर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके.